are not going to discuss about the nouns and types of nouns and all other stuff. We are going to discuss only the relevant things. Relevant things means rules. The rules which determine how the nouns will function in a sentence and what errors can be found on the basis of the rules that we discuss. So in nouns, the first thing that we have to discuss about is possessive case. You already know that noun is the name of a person, place, thing, and all other stuffs, that common noun, proper noun, abstract noun, material noun, all these types and all the classifications. So we are not going to discuss those things which you have studied, which you have read in your earlier classes, in your previous classes. The things that we are going to discuss are the rules which will affect your way to speak, your way to write, how you speak, and all these. So the first thing that we have to discuss in nouns is the use of the possessive case. How do we use the possessive case? Which means how do we use apostrophe s, and where to use apostrophe s? कहाँ पर apostrophe s we have to use and where we don't have to use. Okay. See, a chair's arm is broken. A chair's arm is broken. If you translate it into Hindi, it will become something like कि कुर्सी का बाह टूट गया. मतलब कुर्सी का जो हाथ होता है, बाह होता है, वो टूट गया. Is it a correct sentence? No, it is not. It is an incorrect sentence. Remember this. The first rule says, remember this. कभी भी never use apostrophe s with non-living thing. Never use apostrophe s with a non-living thing. कभी भी पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए we don't use apostrophe s with what? Non-living thing. और यहाँ पर chair जो है बच्चे वो क्या है? It is a non-living thing. So we are not going to use possessive case, and to show the possessive case we are not going to use apostrophe s with chair. Okay. So what can we say then? तो अगर हम लोग को बताना हो कि कुर्सी का जो बाह है वो टूट गया है, तो फिर for that purpose what can we say? The arm of chair. What can we say? The arm of chair is broken. Okay. इस तरह से कहेंगे, ना कि the chair's arm. जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करना हो, पोजीशन दिखाना हो, so what can we say? We can say in the terms of the arm of the chair is broken. Okay. The leg of the table is broken. तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे. Okay. ना कि a table's leg. This is an incorrect sentence. A table's leg, because table is a non-living thing. So with a non-living thing we don't use apostrophe s. एक non-living thing के साथ हम लोग apostrophe s का यूज नहीं करते हैं. This is the first thing that you need to keep in mind. You have to use apostrophe s only with the living things. Okay. Now apostrophe s का यूज और किन किन जगहों पर किया जाता है? What other places we use apostrophe s? The first thing is time, which means a week's lockdown. एक सप्ताह का लॉकडाउन. यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. हम लोग वीक के बारे में, सप्ताह के बारे में, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है, दिस इज नॉट अ थिंग, इसलिए ये डिसाइड नहीं कर सकते लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, या ना ये ना तो लिविंग रिप्रेजेंट करता है ना नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सप्ताह जिंदा है कि नहीं जिंदा है, वी कांट डिस्कस अबाउट दिस, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है. सप्ताह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आप टच नहीं कर सकते इसको. ठीक है. एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो फिर लिविंग नॉन लिविंग का सवाल ही नहीं उठता है. ओके. सो अ वीक्स लॉकडाउन, एक सप्ताह का लॉकडाउन, हम लोग ये बोल सकते हैं. टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज? apostrophe s का. नाउ अ मोमेंट्स डिले, मोमेंट क्या होता है? टाइम का एक पार्ट, तो इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं apostrophe s का. अ मोमेंट्स डिले. We can also use apostrophe s to refer the position of weight. Okay, like weight word, a ton's weight, where weight word is followed. जहां कहीं भी वेट वर्ड फॉलो अप किया जाएगा उसके साथ हम लोग उसके पीछे apostrophe s का यूज कर सकते हैं. लाइक अ टन्स वेट, एक टन का भार. ओके. हियर वी कैन यूज. ओके. वी कैन ऑल्सो यूज टू रेफर अ स्पेस. ओके. लाइक अ नाइफ्स एज, एक चाकू का एज. ओके. एक चाकू का धार, एज, हम लोग उसका सिरा का बात कर रहे हैं. दैट इज एन स्पेस. वो क्या है? स्पेस है. दैट इज अ स्पेस. नाउ अ नीडल्स पॉइंट, नीडल का पॉइंट क्या है? एक स्पेस है, एक जगह है, एक पार्टिकुलर स्पेस है. तो नीडल का पॉइंट, तो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं नाइफ्स एज, नीडल्स पॉइंट. हियर आल्सो वी कैन यूज व्हाट? apostrophe s. एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ आल्सो वी कैन यूज apostrophe s. लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अर्थ, सन, एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. ओके. नेचुरल ऑब्जेक्ट, माउंटेन. ओके. So now Earth's atmosphere, sun's rays. For this purpose we can use what? Apostrophe s to refer the possession over something else. Okay. Now
What does the third thing, the third rule tells us about the use of apostrophe s? See, Shyam's brother's life is good. We can't say this. Remember this? We can't say this. Shyam's brother's life is good. We can't use two apostrophe s simultaneously. एक के बाद दूसरा लगातार apostrophe s हम लोग यूज नहीं कर सकते. ये यूज करना गलत हो जाएगा. इसके जगह पर आप क्या लिखोगे? श्याम्स ब्रदर्स लाइफ इज गुड के जगह पर द लाइफ ऑफ द श्याम्स ब्रदर इज गुड. क्या लिखे? द लाइफ ऑफ द श्याम्स ब्रदर इज गुड, ना कि श्याम्स ब्रदर्स लाइफ इज गुड. करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखोगे क्या? द लाइफ ऑफ द श्याम्स ब्रदर इज गुड. राम्स वाइफ्स कैरियर इज एट पीक. राम के पत्नी का कैरियर ऊंचाइयों पर है. अब बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लगातार हम लोग दो apostrophe s का यूज नहीं करते हैं इन एनी सेंटेंस. सो व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मेशन? द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ इज एट पीक. सही सेंटेंस क्या होगा? राम के वाइफ का कैरियर, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ. नाउ राम्स एंड सीताज डॉटर, अगेन इनकरेक्ट. राम्स एंड सीताज डॉटर नहीं, क्या बोलेंगे? राम एंड सीताज डॉटर. रिमेंबर दिस थिंग. जब कभी भी हम लोग क्या करें, जब कभी भी हम लोग दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हो, दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हो और दोनों का एक ही चीज पर अधिकार हो, राम और सीता दोनों की एक ही बेटी है, ठीक है, दोनों की एक ही बेटी है, तो दोनों का अधिकार जब एक ही चीज पर हो, दोनों का पोजेशन जो हो वो एक ही चीज पर हो, तो केवल एक अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और वो आखिरी वाले के साथ यूज करेंगे. यानी राम के साथ जो अपॉस्ट्रोफी है उसको हटा देंगे. राम एंड सीताज डॉटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. राम एंड सीताज डॉटर, जब दोनों का अधिकार उसके डॉटर पर हो, ये इन दोनों का ये बेटी, इन दोनों की ये बेटी हो सकती है, ठीक है. तो फिर इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज टू रिमूव द apostrophe s from the first word, first noun and put the apostrophe s into the second one. Clear? Now Ram's and Lakshman's daughter, राम का और लक्ष्मण का, राम की और लक्ष्मण की बेटी. अब बताओ, राम और लक्ष्मण की दोनों की बेटी एक हो सकती है? नो, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है. तो राम और लक्ष्मण दोनों की अलग अलग बेटियों का बात हो रहा है, ठीक है. तो सबसे पहली बात, तो दोनों की अलग अलग बेटियों का बात हो रहा है, तो पहले डॉटर का प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि एक बेटी राम की होगी और एक लक्ष्मण की होगी, दो बेटियां होंगी, तो दोनों का प्लूरल, दोनों के लिए हम लोग डॉटर प्लूरल में यूज करेंगे. यहाँ पर हम लोग डॉटर सिंगुलर में यूज किए हैं. क्यों सिंगुलर में यूज किए हैं? सिंपल सा है, सिंगुलर में यूज इसलिए क्योंकि किए हैं क्योंकि राम और सीता दोनों की एक ही बेटी है, और एक ही बेटी है तो एक ही apostrophe s लगेगा, दो apostrophe s नहीं लगेगा, पहले वाले के साथ नहीं लगेगा. लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं राम की भी बेटी और लक्ष्मण की भी बेटी, तो इन दिस सेंस, इस तरीके में, इन दिस सेंस व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज apostrophe s विथ बोथ. ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि राम की भी बेटी है और लक्ष्मण की भी बेटी, अलग अलग, दोनों की अलग अलग बेटियां हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस सा बात है, दोनों का अलग अलग बेटियों के ऊपर पोजीशन है, अधिकार है, इसलिए दोनों के साथ apostrophe s लगाना सही है. तो ये आपको सेंटेंस देख करके डिसाइड करना होगा एवरी टाइम कि पोजीशन जो है वो एक के ऊपर दो का है या फिर दोनों का अलग अलग के ऊपर पोजीशन है. तो अलग अलग पोजीशन होगा तो अलग अलग apostrophe लगा सकते हैं, लेकिन एक ही चीज पर दो का अधिकार होगा तो एक ही apostrophe लगाएंगे, वो भी दूसरे वाले के साथ. So this is the rule. Now the fourth thing is what? Anybody, everybody, anyone, somebody. ठीक है, यहाँ पर s लिख लोगे. Anybody, everybody, anyone, somebody. इनके साथ अगर else आए तो हमेशा else के साथ s लगेगा, apostrophe s else के साथ लगेगा. किसके साथ? else के साथ लगेगा. और अगर else ना आए, ठीक है, अगर else ना आए तो इनके खुद के साथ लगेगा, ठीक है. else आए तो else के साथ लगेगा apostrophe s, खुद के साथ नहीं लगेगा इनमें से किसी के भी. और अगर else ना आए तो इनके खुद के साथ लगेगा. I like your attitude and not anyone else's. यहाँ पर ये नहीं हो सकता था कि I like your attitude and not anyone's else. anyone's else ये गलत हो जाता. सही क्या होता? अगर else आ गया तो apostrophe s else के साथ लगेगा अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है. I like your attitude and not anyone else's. So this is the correct sentence. Okay. Now यहाँ पर else नहीं है इस सेंटेंस में. Everyone's life is different. हाँ, अगर हम लोग else लगाते तो क्या होता है? Everyone else's life is different. ये होता है यहाँ पर डाल करके everyone else's life is different. लेकिन हम लोग else नहीं लगाए हैं तो everyone के साथ ही apostrophe लगाना होगा पोजीशन दिखाने के लिए, that everyone's life is different. Clear? Now, so these were the rules depicting what? Apostrophe, use of apostrophe. Now, fifth rule of apostrophe says that कभी भी a plus noun plus of plus noun, ठीक है,
कभी भी ये फॉर्मेशन आपको दिख जाए कि एक नाउन हो, उसके पहले ए हो और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद फिर एक नाउन हो, किसी भी सेंटेंस में ए के बाद नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नाउन, तो हमेशा जो आखिरी वाला नाउन होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे अ बुक ऑफ राधा इज विथ मी, अ बुक ऑफ राधा इज विथ मी, देख रहे हो बुक क्या है, एक नाउन है, किताब एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। और क्या है, यहाँ पर आर्टिकल ए आ गया, और नाउन के बाद क्या है, ऑफ है, ऑफ के बाद राधा भी किसी का नाम है तो ये भी एक नाउन है, तो ये फ्रेमिंग आ गया अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो कभी भी आपको ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फ्रेमिंग दिख जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फ्रेमिंग दिख जाए तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये अगर हम लोग सीधा लिखते हैं बुक ऑफ राधा इज विथ मी तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, अ बुक ऑफ राधाज इज विथ मी। हाँ, कहने में आपको बुरा लगे अच्छा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रूल इज रूल, व्हाट द ग्रामर सेज इज करेक्ट। सो अ बुक ऑफ राधाज इज विथ मी, दिस द करेक्ट सेंटेंस। अ फ्रेंड ऑफ श्याम इज कमिंग नहीं, अ फ्रेंड ऑफ श्याम्स इज कमिंग, अ फ्रेंड ऑफ श्याम्स इज कमिंग। ध्यान रखोगे, कभी भी ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आ जाए तो आखिरी वाले नाउन के साथ हमेशा वी यूज व्हाट, अपॉस्ट्रोफी एस। सो अ फ्रेंड ऑफ श्याम्स इज कमिंग। नाउ अगला रूल देखो, कभी भी सन इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। सन इन लॉ ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। चीफ, कमांडर इन चीफ या फिर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ओके, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड नाउन्स हैं। तो इन कंपाउंड नाउन्स के साथ हमेशा जो होता है ना, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा, लास्ट में लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस अगर पोजीशन दिखाना हो। चीफ मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ्स, सन इन लॉज, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। ऐसा नहीं कि सन्स इन लॉ लगा दोगे, सन अपॉस्ट्रोफी एस इन लॉ नहीं, सन इन लॉज, चीफ मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ्स अगर अपॉस्ट्रोफी लगाना हो तो। लेकिन अगर प्लूरल बनाना हो तो, यानी कि अगर आपको क्या करना हो, बताना हो कि किसी का 4 सन इन लॉ है तो he has 4 sons in law, he has 4 sons in law, क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं, 4 सन इन लॉ का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अधिकार दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो, ठीक है, हाँ, तो अगर बोलेंगे उसके दामाद का कार तो his son in law's car, यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे लास्ट में, his son in law's car, ठीक है, उसके दामाद का गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर उसके दामाद का अधिकार है, पोजीशन है, तो इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाएंगे। लेकिन अगर बताना हो कि उसके 3 दामाद हैं, 4 दामाद हैं, यानी प्लूरल बनाना हो तो सन्स इन लॉ होगा, ठीक है, ना कि सन इन लॉज होगा, ठीक है। यहाँ पर सन इन लॉज नहीं लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए, सन इन लॉ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे अधिकार के लिए और सन्स इन लॉ लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए। सो कीप दिस इन माइंड, जैसे कमांडर्स इन चीफ बनाओगे प्लूरल बनाने के लिए, अगर अधिकार दिखाना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाओगे, कमांडर इन चीफ्स कार या कमांडर इन चीफ्स हाउस, ऐसा करके, ठीक है। नाउ अगला रूल देख लो बच्चे, अगला रूल कहता है कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन का बात करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का, तो उसका प्लूरल फॉर्म अगर ना हो तो फिर उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे लगेज, एग्जांपल यहाँ आप नहीं देखो, अब सीधा यहाँ पर देखो, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, स्टोन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, ज्वेलरी, ये सब कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, रादर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विथ विच वी यूज व्हाट, सिंगुलर वर्ब ओनली। इसके साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं यूज कर सकते और ना ही इनका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आप लगेज को लगेजेस नहीं बोल सकते, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा सामान है तो इसको ये नहीं बोलोगे कि आई हैव मेनी लगेजेस, आप बोलोगे आई हैव लगेज, मेरे पास सामान है, ठीक है ना कि मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो उसको ये नहीं बोलोगे आई हैव मेनी लगेजेस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ना ही इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, जैसे लगेज आर वेरी हैवी नहीं, लगेज इज वेरी हैवी, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, यानी इसमें एस वगैरह नहीं लगाओगे, इन सारे वर्ड्स में कभी भी नहीं लग सकता, ठीक है। अगर एस लगा दोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ वी नेवर यूज व्हाट, प्लूरल वर्ब विथ दिस बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं तो वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आएगा। नाउ देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच लुक्स प्लूरल बट आर सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपको देखने में लग सकते हैं क्या हो, प्लूरल हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है, जिसमें एस आपको दिख जाए उससे लगेगा आपको क्या ये प्लूरल है, तो लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर हैं रियलिटी में, ठीक है, तो उनके साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं लगा दोगे। जैसे न्यूज, न्यूज में आप देख लोगे एस लगा हुआ दिख गया आपको, बोलोगे ये तो प्लूरल है, नहीं बल्कि ये सिंगुलर है। मीजल्स, मम्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ we use what, singular verb, okay, so keep this rule also in mind. Now
कलेक्टिव नाउन देखो, कलेक्टिव नाउन दो तरह से यूज होता है। कलेक्टिव नाउन हो सकता है कि सिंगुलर हो सकता है कि प्लूरल हो, ठीक है, दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन का, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, ठीक है। नाउ सी, जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, पीपल हो गया, फैमिली हो गया, कमिटी हो गया, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। टीम, जूरी, पीपल, फैमिली, कमिटी, दीज आर ऑल व्हाट, कलेक्टिव नाउन्स। ओके, सो इनका सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल भी यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि सेंटेंस क्या कह रहा है। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब बताओ, ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जो ज्यूरी है विच मींस जजेस का ग्रुप। ज्यूरी किसको बोलते हैं, जजेस का ग्रुप, जज का समूह, ठीक है। तो कोर्ट में जो जजों का समूह होता है, 4-5 जजेस मिल करके फैसला तो एक ही लेते हैं ना बच्चे। ऐसा तो नहीं है कि एक जज बोलेगा फांसी पर चढ़ा दो, दूसरा बोलेगा तो को नेस्तनाबूद कर दो, तीसरा बोलेगा इसको दुनिया से नेस्तनाबूद कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, सभी जजेस का एक फैसला होता है कि अगर फांसी देना है तो फांसी दो, सजा देना है 10 साल का तो सजा दो, जो भी करना है एक करो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। यहां पर हो जाएगा ये सही, ठीक है। अब लेकिन अगर क्या हो, ज्यूरी जो है, क्या जजेस का जो ग्रुप है उनका अपना अपना मत नहीं हो सकता, ओपिनियन नहीं हो सकता, सभी का अपना अपना सोच हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहां पर देख रहे हो, ज्यूरी को हम लोग यहाँ पर प्लूरल ट्रीट किया है, इसलिए उसके साथ वर्ब प्लूरल आ रहा है। यहाँ पर ज्यूरी सिंगुलर ट्रीट हुआ है, इसलिए वर्ब उसके साथ सिंगुलर आ रहा है। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि इन सारे वर्ड्स का, इन सारे नाउन्स का हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर सेंटेंस कह रहा है कि फैसला लेने का काम कर रहा है, तो दिमाग लगाएंगे कि जजेस का जो ग्रुप है उसका फैसला तो एक ही होता है, तो जब एक बात तो सिंगुलर का बात हो रहा है, विच मींस वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगा। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो ज्यूरी है वो अपने मत में क्या है, डिवाइडेड है, उनका मत जो है अलग अलग है, ठीक है। डिसीजन अलग अलग, डिसीजन नहीं, उनका जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग है। हाँ, तो विचार तो अलग अलग हो सकता है लेकिन फैसला अलग अलग नहीं सुना सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जजेस का जो ग्रुप है वो एक बोलेगा फांसी दे दो, दूसरा बोलेगा तोप से उड़ा दो, तीसरा बोलेगा छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, उनका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, एक बोलेगा देखो ये हमको सही नहीं लग रहा, दूसरा बोलेगा नहीं हमको सही लग रहा है, तीसरा बोलेगा नहीं सब मस्त है, हाँ कोल्ड ड्रिंक पियो चिल करो। तो ये ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए जब ओपिनियन अलग अलग हो तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। बच्चे समझ में आया सभी को? चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, फोर्थ रूल देखते हैं बच्चे। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कभी भी एक सिंगुलर नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन एक प्रेपोजिशन से जोड़े जाएं, यानी दो सिंगुलर नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाए, तो फिर ध्यान में रखोगे ऐसे सेंस में कभी भी ये नाउन जो होता है ना प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जब बीच में प्रेपोजिशन हो तो उसके दोनों तरफ सिंगुलर नाउन ही हो सकता है, उसके दोनों तरफ प्लूरल नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, ये आफ्टर जो है बच्चे प्रेपोजिशन है, इसके पहले वुमेन जो है उसके बाद जो वुमेन है ये क्या है, प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? WOMAN, वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है। क्या लिखेंगे? WOMAN, वुमेन आफ्टर WOMAN, वुमेन, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस गलत हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज, पेजेस क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो कभी भी प्रेपोजिशन जब दो नाउन को जोड़े तो वो दोनों सिंगुलर होता है। रोज बाय रोज, ठीक है, ये एस हो जाएगा। रोज बाय रोज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रो बाय रो होगा सही, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन से जुड़ता है, दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं प्रेपोजिशन के द्वारा। अब अगला रूल जो बच्चे है, इट सेज इट डिस्कसेस अबाउट हाइफेनेटेड नाउन। हाँ से वो हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे कि कहां पर फॉर यूज करना है, कहां पर इन, कहां पर एट। यहाँ हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हियर वी आर डिस्कसिंग नाउन, बाय, फॉर, ऑफ, इन, एट, इन सब का यूज करना हम लोग प्रेपोजिशन में सीखते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग नाउन, यहाँ पर कहां सिंगुलर नाउन आएगा, कहां प्लूरल नाउन आएगा, वो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। दैट रूल इज फॉर प्रेपोजिशन थिंग। ओके नाउ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन ही जुड़ सकता है एक प्रेपोजिशन के द्वारा, दो प्लूरल नाउन को एक प्रेपोजिशन नहीं जोड़ता है, ठीक है। नाउ अगला जो रूल है, इट सेज हाइफेनेटेड नाउन के साथ व्हाट कम्स, हाइफेनेटेड नाउन को कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। हाइफेनेटेड का मतलब कभी भी दो नाउन्स के बीच में जब हाइफन लगा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, हाइफन लगा हुआ आ जाए, ठीक है, ऐसे नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, उनके साथ एस नहीं लगता है। जैसे 5 रुपीज अगर हम लोग बोले तब तो सही है, क्योंकि यहाँ पर हाइफन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 रुपीज सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 5 रुपी नोट बोले ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 5 और रुपी के बीच में हाइफन है, तो हम लोग यहाँ पर 5 रुपी नोट तो सही है, लेकिन यहीं पर बोलते 5 रुपीज नोट तो गलत हो जाता है। 5 रुपीज सीधा बोलोगे सही है, लेकिन 5 रुपीज नोट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, 5 रुपी नोट बोलना होगा।
जैसे आप क्या बोलते हो, 5 स्टार होटल बोलते हो ना बच्चे, 5 स्टार्स होटल तो नहीं बोलते हो, ठीक है, हाँ 5 स्टार होटल बोलते हो, क्योंकि 5 और स्टार हाइफेनेटेड नाउन्स हैं, ठीक है, तो ये ऐसे हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं, हाइफेनेटेड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, तो सिंगुलर में ही रहते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि 10 माइल्स डिस्टेंस, ठीक है, 10 माइल्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, हाँ 10 माइल डिस्टेंस सही होगा, अगर हाइफन लगा हुआ तो नहीं लगा हो तब तो कोई बात नहीं है, कैन ओके। अब ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, याद कर दो, दिमाग में बिठा लो, सबसे ज्यादा एरर्स इसी से आते हैं। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इनके साथ हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, कीप दिस इन माइंड, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ओके। लाइक ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, ये सही है सेंटेंस, ईच ऑफ आया, नाउन क्या आएगा, प्लूरल, यहाँ पर फ्रेंड यूज करके दे दिया जाएगा आपको, गलत हो जाएगा, फ्रेंड के साथ एस लगाएंगे तो प्लूरल नाउन बन गया, और वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आपको यहाँ पर देख करके कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर वर्ब क्या, नाउन क्या है, प्लूरल है, फ्रेंड्स इज कमिंग कैसे बोल सकते हैं, फ्रेंड्स आर कमिंग बोलना चाहिए क्योंकि इसके साथ वर्ब प्लूरल आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो नॉर्मल रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर अलग रूल एप्लीकेबल होगा, एंड दैट रूल सेज व्हाट, ईच ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, ठीक है, ईच ऑफ माय फ्रेंड्स, जब हम लोग ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ लगा देते हैं ना तो हम किसी एक का बात कर रहे होते हैं, जैसे ईच ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त जो है ना उनसे एक एक, ईच ऑफ का मतलब एक एक, आउट ऑफ मेनी, विच मींस ईच ऑफ माय फ्रेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे दोस्तों में से एक एक दोस्त आ रहा है, तो हम लोग एक एक का बात कर रहे हैं एक बार में, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, ऑल माय फ्रेंड्स आर कमिंग नहीं बोलेंगे, ऑल माय फ्रेंड्स आर कमिंग यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, हम सभी दोस्तों का एक साथ बात नहीं कर रहे हैं, मेरे सभी दोस्तों में से एक एक करके सब आ रहे हैं, विच मींस we are talking about individual, that's why we use what, singular verb here. Now there are some additional rules of noun that you must keep in mind, okay. The first thing, cousin के साथ कभी भी sister brother बोलना पाप है, महापाप है, आप कभी नहीं बोल सकते कि he is my cousin sister, she is my cousin sister और he is my cousin brother, आप सीधा बोलोगे he is my cousin और she is my cousin, इसी से क्लियर हो जाएगा। जब आप बोलोगे he is my cousin तो ऑब्वियस सा बात है कि वो ब्रदर होगा क्योंकि he का यूज आपने किया है, बोलोगे शी इज माई कजिन तो ऑब्वियस सा बात है, इसी से क्लियर हो जाएगा कि वो सिस्टर है, इसलिए आपने क्या किया है, शी का यूज किया है। कभी भी कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर लगाना घोर पाप है, ठीक है, चलो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कभी भी आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोल सकते, आप बहुत बहुत कॉमनली बोलते हैं बच्चे, दे यूज वेरी कॉमनली, व्हाट दे यूज, ही इज अ चीटर, नो ही इज अ चीट, चीटर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, चीटर जैसा कुछ नहीं होता, चीटर का यूज करना घोर पाप है, कभी भी चीटर का नाउन के रूप में आप यूज नहीं कर सकते। ही इज अ चीट और शी इज अ चीट, अगर कोई आपसे धोखा करता है तो आप बोलोगे ही इज अ चीट और शी इज अ चीट, ना कि ही इज अ चीटर, ओके। Normally people use so they might say, you know, particularly students, they say that, they say what, that Aniket is a cheater, he is a cheater, so we don't say this, he is a cheat, not a cheater, okay। कभी भी हम लोग एविडेंस के साथ एस नहीं लगाते हैं, नेवर यूज एविडेंस इन प्लूरल फॉर्म, ओके। आप ये नहीं बोल सकते देयर आर मेनी एविडेंसेज आउट देयर, नो, देयर आर मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस, ऐसा बोल सकते हो, या फिर देयर इज अ एविडेंस, और फिर देयर इज एन एविडेंस आउट देयर, एक के लिए बोलना हो तो सीधा देयर इज एन एविडेंस, कई सारे एविडेंस को बोलना हो तो देयर आर मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस आउट देयर, ऐसे बोलोगे, ठीक है। कभी भी स्पूनफुल्स और कपफुल्स का यूज करोगे आप, ठीक है, स्पूनफुल्स मतलब कप, कपफुल्स स्पूनफुल्स का मतलब भर भर करके, ठीक है, चम्मचों और कपों में, तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, एस जो है वो अंत में लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, इसका हमेशा एस लगा हुआ ही आएगा, आप ऐसे नहीं कपफुल अलग और स्पूनफुल अलग करके नहीं यूज कर सकते, एस अंत में लगेगा, स्पून्सफुल नहीं बोल सकते, कप्सफुल नहीं बोल सकते। दोज के साथ हमेशा नाउन जो आएगा बच्चे वो हमेशा प्लूरल आएगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेनेवर वी यूज दोज इन अ सेंटेंस तो उसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, जैसे दोज बॉय आर कमिंग नहीं, दोज बॉयज आर कमिंग, क्या आया, प्लूरल नाउन आया, ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ बेसिक सा बात, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, there are certain nouns which look similar but used as plural, जैसे cattle, police, people, gentry, आपको देखने में क्योंकि एस नहीं लगा है तो आपको लगेगा कि ये क्या है, आपको लगेगा कि क्या है ये है आपको सिंगुलर लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, ये which means अगर आप बोलोगे कि cattle is grazing in the field, गलत हो जाएगा, cattle are grazing in the
फील्ड, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल वर्ब है, भले ये सीएस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये प्लूरल वर्ब है, उसके साथ आर का यूज करेंगे। जैसे पुलिस इज चेजिंग द क्रिमिनल, गलत बात। आप एक पुलिस वाले के लिए बोल रहे हो तो बोलोगे पुलिसमैन, पुलिसमैन, द पुलिसमैन इज चेजिंग द क्रिमिनल, हाँ ये सही है, लेकिन द पुलिस इज चेजिंग द क्रिमिनल नहीं, द पुलिस आर चेजिंग द क्रिमिनल। पुलिस का मतलब होता है फोर्स, पुलिस फोर्स, विच मींस उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सारे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। जैसे पीपल, आप नहीं बोल सकते देयर इज अ पीपल देयर, नो, देयर आर पीपल्स देयर। पीपल क्या है, प्लूरल है। जेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है, ये सब क्या है, क्लर्जी, ये सब क्या है बच्चे, देखने में आपको सिंगुलर लग सकते हैं लेकिन ये यूज होते हैं प्लूरल। पाउल्ट्री, ठीक है, ये सब क्या है, देखने में आपको लगेंगे क्या, सिंगुलर, लेकिन यूज होते हैं प्लूरल। So keep this thing in mind. Now there are certain nouns which looks plural but used as singular. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूज, मीजल्स, मम्स पहले पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे nouns होते हैं which looks plural but used as plural, ठीक है, which means जो दिखते भी plural है और यूज भी होते हैं प्लूरल ही, ठीक है, दिमाग में रखोगे। जैसे सीजर्स, आप कैंची जो है उसको सीजर्स ही बोलोगे, आपको अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि आई हैव अ सीजर, नहीं, आई हैव अ सीजर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आई हैव सीजर्स, मतलब कैंची जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो सीजर्स जो है वो एस लग करके आता है, मतलब कंपनी में ही एस लग करके बन करके आता है, ठीक है। स्पेक्टेकल, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक चश्मा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव ए स्पेक्टेकल, नो, आई हैव स्पेक्टेकल्स, मेरे पास चश्मा है। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है, स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा नहीं होता है, ठीक है। अब ट्राउजर्स जो होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव अ ट्राउजर, नहीं, आई हैव ट्राउजर्स। आप एक भी बोलोगे फिर भी उसके लिए क्या बोलोगे, आई हैव ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर एस लग करके आता है, ट्राउजर जैसा कोई शब्द नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। जैसे पैंट्स, आप बोलना, जब आप बोलते हो कि आई हैव अ पैंट, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, पैंट पहन लो, नहीं, पैंट्स पहन लो, ठीक है। पैंट्स होता है करेक्ट यूज, आई हैव पैंट्स, ओके, आई बाउट सम पैंट्स, आई बाउट पैंट्स, ओके, ना कि आई बाउट पैंट। ऐसे ही बाइनोकुलर्स, ठीक है, जो दूरबीन होता है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि बाइनोकुलर्स इज देयर, नो, बाइनोकुलर्स आर देयर, और बाइनोकुलर्स जो होता है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। और बाइनोकुलर्स, आप एक बाइनोकुलर नहीं बोल सकते कि उसके लिए एस हटा दो तो बाइनोकुलर हो जाएगा, बाइनोकुलर्स ही यूज करना होगा आपको। एल्म्स, ठीक है, एल्म्स का मतलब जो दिया जाता है गरीबों को सहायता राशि, दैट, सो एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ठीक है, पुअर ना कि पुअर्स, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, किसको दिया गया, सहायता राशि गरीबों को दिया गया, एल्म्स। नाउ there are certain, like there are certain nouns which are used as singular also plural also, which means singular plural दोनों में सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डियर, शीप, फिश, आप ये नहीं बोल सकते कि आई हैव 2 डियर्स, नहीं, आई हैव 2 डियर। आप ये नहीं बोल सकते कि देयर आर 5 फिशेस इन द टैंक, फिशेस जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, नाउन के लिए, हाँ, वर्ब के लिए या फिर दूसरे सेंस में आप यूज करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, लेकिन नाउन के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, फिश का प्लूरल नहीं बना सकते, ओके। आप क्या बोलोगे, ओके, आप क्या बोलोगे, फिश, अ फिश, 2 फिश, 3 फिश, ऐसे ही आप यूज करोगे, ठीक है। नाउ सीरीज जो है आप इसको ऐसे ही यूज करोगे, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, ना तो इससे एस हटाओगे ना एस जोड़ोगे। स्पीशीज, क्रू, टीम, जूरी, ये सब क्या है, इन सब में ना तो प्लूरल इनका बनाया जाता है ना सिंगुलर। सिंगुलर में यूज करना हो तो भी यूज करेंगे इसी को, प्लूरल में यूज करना हो तो भी यूज करेंगे इसी को। So this was your topic of noun.